الحمدللہ. ٹھیک ہے وشال، میں کچھ بول رہا ہوں، ریپیٹ کرو. بسم اللہ. آؤ وشال پیچھے آؤ، کیچی لاؤ. السلام علیکم مسلمانوں، نبی کے عاشق، نبی کے دیوانوں، مفتی انس جو ثنا خان کے شوہر ہیں اور منور فاروقی نے مل کر اسلام کا مذاق بنایا ہے. بلکہ سوری، منور فاروقی میں کہہ رہا ہوں، علامہ مولانا حافظ و قاری مولانا منور فاروقی صاحب نے اسلام کا مذاق بنایا ہے. اب میں مولانا کیوں کہہ رہا ہوں منور فاروقی کو، یا قاری یا مفتی صاحب کیوں کہہ رہی ہوں، وہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھانے والا ہوں. اور آج منور فاروقی کی اس ویڈیو کی حقیقت اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، مطلب حقیقت میں جو مذاق بنایا ہے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، تو وہ اس نے مفتی انس نے بنایا ہے مذاق. جو ثنا خان کے شوہر صاحب ہیں انہوں نے مذاق بنایا ہے مفتی انس نے، لیکن ساتھ جو دیا ہے پوری طریقے سے مذاق بنانے میں، اسلام کا تماشا بنانے میں، مسجد کا مذاق بنانے میں، وہ ساتھ دیا ہے ہمارے قاری و حافظ مولانا منور فاروقی صاحب نے. آج ان کی شان ہم بیان کرنے والے ہیں منور فاروقی صاحب کی. مسلمانوں، اگر آج ویڈیو شروع کر دیا ہے نا پیارے، تو شروع کے 5 یا 6 منٹ ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کریں آج، کیونکہ آج اس ویڈیو کے اندر مفتی انس کی کچھ ایسی حقیقتیں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑنے والے اور آپ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھنے والے ہو کہ واقعی مفتی انس صاحب جو ہیں ان کی حرکتیں کیسی ہیں، حرکتیں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں. تو ایک تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ 6-7 منٹ ویڈیو اسکپ نہ کریں اگر آپ ویڈیو شروع کر ہی دیا ہے آپ نے. اور دوسری گزارش یہ بھی کرنا چاہوں گا مسلمانوں کا، پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے کمنٹ کوئی نہ کرے، کیونکہ کچھ ایسا بھی آئیں گے شاکاہاری کمنٹ کرنے کے لیے جو یہ کہیں گے اگر یار حضرت وہ دینی تو سکھا رہا ہے، یار ایسی تو کر رہا ہے، ویسے تو کر رہا ہے، کیونکہ گمراہی ذہنیت میں گھس چکی ہے. تو آج شریعت سے بات ہم کرنے والے ہیں، دین سے بات کرنے والے ہیں، کیونکہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی کا رد و بدل کچھ نہیں ہو سکتا. ویڈیو سوشل میڈیا پہ ایک چل رہی ہے اس کی منور فاروقی کی کہ مسجد کے اندر یہ منور فاروقی آیا تھا، مسجد کے اندر بلایا کس نے تھا؟ مفتی انس صاحب نے جو ثنا خان کے شوہر ہے. پہلی بات تو مفتی انس کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو شخص آپ کو دکھائی دے رہا ہے جن کا نام مفتی انس ہے، انہیں چند مہینے پہلے کوئی جانتا تک نہیں تھا کہ مفتی انس نام کی چیز بھی کوئی ہے یا مفتی انس نام کا کوئی مفتی بھی ہے. لیکن اچانک سے ان کی شادی ہوتی ہے ثنا خان سے، جو فلم ایکٹریس ہیں ثنا خان، آپ جانتے ہوں گے، ان سے شادی ہوتی ہے. تو ایک تو بہت بڑی بات میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ثنا خان جو ہے ان کی شادی مفتی انس صاحب سے ہوتی ہے. تو ثنا خان تو سدھر گئی جتنی سدھرنی تھی، مطلب جیسے ان کے حالات تھے جس وقت وہ فلم ایکٹریس تھی، اب اگر حالات دیکھے جائیں تو اس سے جو ہے 90 گنا بہتر ہو چکے ہیں بھائی. 10% ابھی خامیاں ہیں، الحمدللہ اللہ سے دعا ہے وہ بھی صحیح کر دے، لیکن وہ جتنا ہو سکتا تھا سدھر گئی. لیکن ان سے شادی کرنے کے بعد میں مفتی انس صاحب یہی بول گئے کہ حقیقت میں ہم مفتی ہیں، عالم دین ہے یا کیا ہے، یہ بن گئے سیلیبریٹی. ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ پہلے چھوٹی سی وہ ویڈیو تو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا جو منور فاروقی مولانا منور فاروقی صاحب نے جو اسلام کا مذاق بنایا. تو پہلے مفتی انس کی شروعات کر رہے ہیں کہ مفتی انس کے حالات کیسے ہیں. چھوٹی سی اس ویڈیو سے شروعات کرتے ہیں، پہلے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں. آپ کے ساتھ تو اس میں تو کہاں لیمبو باندھے آپ نے جا کے کیا بتا. یہ قیامت کے دن ہی راز کھلے گا. یہ رمضان میں لوگ وہ دعا بھی جاننا چاہتے ہیں. ہاں وہ دعا آپ بتائیے کہ مفتی صاحب نے کہاں سجدہ کیا ہے. ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھ لیا منور فاروقی مولانا منور فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں مفتی انس صاحب سے کہ بھئی آپ نے کون سے نیبو اور جو ہے ٹماٹر باندھے تھے، جو کہنے کا مقصد یہ تھا ثنا خان آپ کو مل گئی. تو وہ کہتے ہیں بس یہ تو قیامت کے دن راز کھلے گا کہ میں نے کتنی جو ہے محنت کری ہے، کون سی دعائیں پڑھی ہیں ثنا خان کو پانے کے لیے. مقصد کہنے کا ان کا یہ ہے کہ ان کی خوش قسمتی دیکھو کہ ایک فلم ایکٹریس سے ان کی شادی ہو گئی. ذہنیت دیکھو مفتی انس صاحب کی، یعنی ان کی شادی جو ثنا خان سے ہوئی ہے ان کے لیے نصیب والی بات ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ثنا خان کا نصیب تیز ہے کہ ان کی شادی ان سے ہوئی ہے، کیونکہ ایک فلم ایکٹریس کو جو ہے ایک مفتی کا ملنا، عالم دین کا ملنا اس کے لیے خوش نصیبی ہے. لیکن نہیں، یہ مفتی انس صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں فلم ایکٹریس ثنا خان مل گئی. اور ایسے انسان کو شو میں بلا کر شو بنا کے بے پردگی کے ساتھ حرکتیں کر رہے ہیں. منور فاروقی کو آپ جانتے ہوں گے کہ دین کا مذاق جس طریقے سے اس نے اڑایا ہے بے غیرت نے، ایسا کوئی تو دشمنان اسلام ہے وہ بھی نہیں اڑاتا. اب مسجد کی ویڈیو میں آپ کے سامنے چلانے سے پہلے ایک ویڈیو آپ کی ذہنیت بنانے کے لیے کہ منور فاروقی کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے دھیان سے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں. نازیہ، آپ کا نام کیا؟ وشال. نازیہ کیا کر رہی وشال کے ساتھ؟ تو یہ کیا لو ریورس لو جہاد چلا رہے ہو تم لوگ؟ ٹھیک ہے وشال، میں کچھ بول رہا ہوں، ریپیٹ کرو. بسم اللہ.
आओ विशाल पीछे आओ, कैची लाओ। तो जी हाँ मुसलमानों, वीडियो के अंदर देख लिया किस तरीके से दीन का इस्लाम का मजाक बना रहा है। अरे ये तो लव विशाल, ये तो लव जिहाद हो गया। उसके बाद में कह रही आओ आओ कैंची लेकर। कैंची से मतलब इसका क्या था, खतना जो मुसलमानों के अंदर होती है, मुसलमानी जिसे कहते हैं आम जबान के अंदर, उसका मजाक बना रहा। पहली बात तो जाहिल को मैं बताना चाहता हूँ बेगैरत, जब तुझे पता नहीं दीन की इस्लाम की नॉलेज नहीं है तो क्यों तू दीन का ज्ञान फैलता है। हकीकत यह है कि मुसलमानी जो होती है, खतना जिसे कहते हैं, अगर कोई मुसलमान खतना नहीं भी करागा तो ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान से खारिज हो जाएगा या मुसलमान नहीं रहेगा। याद रखना, अगर खतना नहीं भी कराता है तब भी इंसान मुसलमान है। लेकिन ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और इसके बहुत सारे फायदे आप साइंस में जाकर डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आपको पता होगा। अब इसकी ये वीडियो आप देखें, ये मस्जिद के अंदर आया, ये जामा मस्जिद है जिसमें मुफ्ती अनस साहब क़िबला तकरीर कर रहे थे। अब जैसी तकरीर कर रहे थे तो मौलाना मुनव्वर फारूकी साहब हाजिर हुए। कौन मौलाना मुनव्वर फारूकी? आप जान गए होंगे, जो दीन का इस्लाम का इतनी बदतमीजी के साथ मजाक बनाता है कि भाई जैसे मैंने कहा, गैर मुस्लिम जो दुश्मनाने इस्लाम है वो भी नहीं बना सकते। मुफ्ती अनस साहब बैठे हैं, आप देख रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं बैठे हुए। तकरीर करने के बाद में मौलाना मुनव्वर फारूकी साहब आए, माइक लगाया, और माइक लगाने के बाद में पहले तो वो खड़े होकर तकरीर करेगा, उसके बाद में ये मुफ्ती अनस साहब को गवारा नहीं हुआ कि इतने बड़े अल्लामा खड़े हैं। वो कुर्सी पर से उठे और मौलाना मुनव्वर फारूकी साहब को बिठा दिया। मतलब एक मुफ्ती नीचे बैठा है और एक जो जाहिल है, जिसे जिन्हें इस्लाम की समझ है ना दीन की समझ है, और रात दिन इस्लाम का दीन का हमारी माँ बहनों का मजाक बनाने वाला इंसान है, वो कुर्सी पे बैठकर, कुर्सी कौन से जानते हैं अभी? ये कुर्सी वो है जिसमें इमाम मस्जिद का बैठकर खुतबा देता है। यानी अपनी जगह मस्जिद की इमाम की जगह पर इस जाहिल को बिठाकर और खुद मुफ्ती साहब नीचे बैठकर और तब उससे लोगों को ज्ञान दिलवा रहे हैं और तब लोगों को समझवा रहे हैं। बताइए इस इस्लाम का, इस दीन का क्या मजाक बना रखा है? क्या होगा इसका? जो मस्जिद के इमाम है उन्हें मार मार के मस्जिदों से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन जो ऐसे सेलिब्रिटी है, अब मकसद ये हो चुका है मेरे प्यारे, जितना बड़ा क्रिएटर है, जितना बड़ा बदतमीज है, जितना बड़ा बेहया है, इतनी बड़ा दीनदार है। और ये एक ही वीडियो नहीं है, इसकी इतनी वीडियो है जिसमें मुफ्ती अनस साहब ने इसे अपने सीने से सीना लगाकर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए जो है, इन्होंने बहुत सारी मस्जिदों में तकरीरें करा रहे हैं और ये हरकत करे। आप कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में करने वाले हैं कुछ लोग, ये भी मैं बता रहा हूँ क्या कहेंगे, यार अच्छी बात है, समझा रहा है मेरे भाई, मैं इस बात से एतराज नहीं करता। एतराज इस बात से करता हूँ कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मस्जिद के मुसल्ले की इमामत को हल्का नहीं समझो। यहाँ पर इस कुर्सी पे हर कोई नहीं बैठ सकता, कोई मिनिस्टर तक नहीं बैठ सकता आगे, जो मस्जिद में खुतबे वाली कुर्सी होती है, लेकिन इन्होंने इतने बेहया को बिठा रखा है। अच्छा ये मुनव्वर फारूकी जैसा भी है, लेकिन ये मुफ्ती अनस साहब की हरकत है। आप देखो, जैसे मैंने कहा कि शादी करने के बाद में वो तो सुधर गई हैं, लेकिन इनके हालात ऐसे हो गए कि ये भूल चुके हैं मुफ्ती आलिम हूँ। इस वीडियो के अंदर देखें, इस वीडियो के अंदर खाना उन्हें पकाने का कोई शो बनाया है और शो बना के मुफ्ती अनस साहब तो पीछे खड़े और गैर महरम यानी मुनव्वर फारूकी इनके सना खान के साथ खड़े होकर खाना बनवा रहा है। और इसके अंदर शो के अंदर उल्टी सीधी बातें भी वो करता है कि व्यूज पाने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो, मतलब इनके मुंह पर इनका मजाक बनाकर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शो ये कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोग ये भी सवाल उठाने वाले हैं मेरी वीडियो देखकर कि भाई अच्छी बात है, अब ये सुधर रहा है, चलो मस्जिद के अंदर समझा रहा, अल्लाह पाक इसे हिदायत दे और अब हो सकता है सुधर रहा हो। नहीं, अब भी इसका एक शो आ रहा है, उस शो का नाम मुझे पता नहीं है, आप जानते होंगे, जाकर सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर वो बेहयाई कर रहा है, ये वो बेगैरती कर रहा, कसम खुदा की अगर आप उसे देख लेंगे तो आपकी जहनियत के अंदर गुस्सा भर जाएगा कि ये हरकत कर रहा है। इसके वो गिरगिट है, ये मुनव्वर फारूकी, ये वो गिरगिट है। अगर मस्जिद के अंदर आकर खड़ा हो गया तो मौलवी मुफ्ती बनकर खड़ा हो जाएगा कि इससे बड़ा नेक कोई नहीं है। और उसके बाद में जैसी मस्जिद के बाहर निकला और मस्जिद के बाहर निकलने के साथ में अपने शो में पहुंचा तो वो हरकतें करनी शुरू कर देता है कि भूल जाता है मैं मुसलमान हूँ या मेरे अंदर ईमान मौजूद है। ये इसकी हरकतें हैं। हकीकत में जो ये मुसलमानों को गिरोह बनाता है, मुसलमानों के मस्जिदों में जाकर जो तकरीरें करता है, उसकी वजह सिर्फ एक ही मकसद है उसका, और मकसद वो है कि मैं मुसलमानों मेरे फॉलोवर्स बने रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि 1% इसका गैर मुस्लिम फॉलोवर्स नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। तो मुसलमानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मुसलमानों होश के नाखून लो, होश के, ऐसे सेलिब्रिटी मत बनाओ ऐसे लोगों को। अबे जो तू काम कर रहा कर, अब मस्जिद में जाकर खुतबा दे रहा, कल को जाकर मस्जिद की इमामत भी करेगा ये। अब आने वाले टाइम ऐसा हो जाएगा फिर ऐसे लोगों की हरकतों की वजह से, जैसे ये मुफ्ती अनस साहब है, मैन आदमी है मुफ्ती अनस है, ये मुफ्ती अनस साहब जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये भूल चुके हैं कि मुफ्ती हूँ क्या हूँ। ये तो इनकी हरकत ऐसी हो गई कि मैं तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो रही है, पार्टियों में जा रहे हैं, वो ऐसा कोई सा काम नहीं कर रही है जो गुनाह का काम ना हो, मैं मानता हूँ। और कुछ मौलवी भी इनकी तरफदारी में आ गए थे, मैंने देखा जो नाम निहाद मौलवी है, अरे यार चलो इतना तो किया, इतना किया। मैं मानता हूँ सना खान एक ऐसी लड़की है कि अगर ये मुफ्ती अनस साहब बिल्कुल पर्दे के अंदर भी उन्हें रखें और पूरी शरीयत को फॉलो कराएं तब भी वो मना नहीं करेगी, लेकिन उनके जरिए से इनकी दुकान बंद हो जाएगी।
इनकी दुकान बंद हो जाएगी। सना खान से शादी इन्होंने इसलिए की थी हकीकत में कि ये जो है वायरल हो सके और ये हरकतें कर सके कि भाई अरे अब तो बहुत बड़े मुफ्ती अनस साहब तो स्टार हो गए। तो मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा मेरे प्यारे, अगर किसी के पीछे जा रहे हो तो पहले देख तो लो वो कर क्या रहा है। याद रखना, मौलवी, मुफ्ती, आलिम, हाफिज, कारी, चाहे मैं हूं कोई भी हो, हम उस वक्त तक उसकी पैरवी करते हैं, हम उस वक्त तक उसे मानते हैं जब तक वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करता है। और जैसी शरीयत को उसने अनफॉलो किया, हम उसे न मुफ्ती मानते हैं, न आलिम मानते हैं, हम उसकी पैरवी करनी बंद कर देते हैं। ये जो मुनव्वर फारूकी हरकत कर रहा है ना इनके कंधों पर चढ़ के, हकीकत में जो इनकी पुष्ट बधाई कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी के, मुफ्ती अनस साहब तो कर रहे हैं, किसी और मौलवी को देखा कहीं से जो है स्टेज पे बिठा के तकरीर करी। इस मुनव्वर फारूकी से मैं कहना चाहूंगा, जा मैं कह रहा हूं तो उससे 10 दिन मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ रह के देख। अगर 10 दिन मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ किसी ऐसे आलिम के साथ तू रह लिया जो आलिम बाअमल है, तो तुझे पता चल जाएगा शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है। बेगैरती बेहयाई करनी तो बंद कर देगा। अब मैं मुसलमानों से बिलखुसूस गुजारिश करना चाहूंगा, मेरे भाइयों इसका बाइकाट करो, इसे समझाने की कोशिश करो मुनव्वर फारूकी का तू क्या है और क्या कर रहा है। और ये जो मुफ्ती अनस साहब है इनकी हकीकत भी मैंने आपके सामने रख दी कि हकीकत में ये शादी करके बिगड़ गए और सना खान शादी करके सुधर चुकी है। अब आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के पास को शेयर करें ताकि ऐसी हरकत को कोई भी फॉलो ना करे, ऐसी हरकत की कोई भी पैरवी ना करे। देखो मस्जिद की इमामत को हल्का ना समझो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मस्जिद के मुसल्ले पे जो खड़ा है वो तुम्हारा नबी है और जो पीछे खड़े हैं वो सहाबा है। यानी अपना मर्तबा दिया है मुसल्ले की इमामत को अल्लाह के नबी ने, और वहां पे तुम जायज है बेहया को, बेगैरत को, दीन के इस्लाम के मजाक बनाने वाले को खड़ा कर रहे हो और फिर मुसलमान उस पर कमेंट कर रहे हैं मुझे वीडियो इसलिए बनानी पड़ी है। याद रखना, हम सिर्फ उस मौलवी को, उस मुफ्ती को, उस इंसान को फॉलो करते हैं जो शरीयत को फॉलो करता है। जो शरीयत को फॉलो नहीं करता हम उसे कुछ नहीं समझते अपनी नजर में। मुसलमानों वीडियो शेयर करो और लोगों को समझाओ कि ये मुनव्वर फारूकी एक ढोंगी, एक गिरगिट इंसान है। ये हकीकत में ये कुछ नहीं करता, जैसे मैंने कहा मस्जिद में जाकर मौलवी बन जाता है और बाहर जाकर फिर इस्लाम का उसी मस्जिद का मजाक बनाने ये शुरू कर देता है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखो। और आपका अपना चैनल गुलफाम रज़ा ऑफिशियल दीन इस्लामिक अपडेट के लिए, सच्ची आवाज उठाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे। अस्सलाम वालेकुम।